علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد میں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے، نہ بھی کہیں تو دل میں نیت ضروری بھی ہے، کافی بھی ہے۔ اور اب معتکف ہوگا جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکتے۔ ہاں نیت اب کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، تاہم مناسب یہ کہ نیت کر کے نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں، کھانے پینے کے لیے نہیں۔ تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں۔ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ بھی کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اربعین اطہار کے 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کے ہم اپنے بچوں کی شادی کا فرض ادا کر سکیں، شادی کو فرض سمجھنا ہے کہنا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنی عمر دے کہ اپنے بچوں کی شادی کا فرض ادا کر سکیں، تو یہ شادی کو فرض کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں بعض صورتوں میں ویسے بھی شادی فرض ہو جاتی ہے، لیکن یہاں جو یہ لوگ فرض کہتے ہیں نا، تو یہ ایک عرفی فرض ہے الفاظ کے، یعنی یہ شرعی فرض نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے وغیرہ، تو یہ شرعی فرض نہیں ہے، کہنے میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا رمضان میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے، جواب ارشاد فرما دیجیے۔ تو باہر نکل کے تو پریشان کرے گا نا، یہ اس سے پہلے سے پناہ کے لیے نہیں اپنے حصار کر لیں، پہلے سے حفاظت کا انتظام تو ہوتا ہے نا، دشمن تو یہاں نہیں ہے پھر بھی موقع تو نہیں سیکورٹی لگی ہوئی فیضان مدینہ کے باہر۔ اللہ کے نیک بندے، شیطان بند ہے تو اس میں سرکش جنات ہوتے ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں، تو وہی شیطان ہوتے ہیں جو باغی
जिन्नात होते हैं ना, तो उनको शैतान बोलते हैं, शरीर जिन्नात को। तो ये बंद होते हैं। और रहा ये कि अपने साथ जो पैदा होता है शैतान, हर एक के साथ एक शैतान पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है ना, जो हमजाद बोलते हैं, ये आज़ाद होता है, ये कैद नहीं होता। तो ये भी बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है। तो यूँ मतलब शैतान से पनाह मांगना तिलावत से पहले, खासकर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो सुन्नत है। ये नहीं रमज़ान में ये सुन्नत मौकूफ़ हो गई। अब कौन सा शैतान बंद होता है? और ये जो बड़ा शैतान जो सबका इनका बाप इब्लीस, ये बंद होता है। अब इसमें भी हदीसें और रिवायतें, फिर उलमा के अक़वाल, इनमें भी कुछ मतलब कलाम होते हैं। तो बहरहाल है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये जिस तरह रमज़ान शरीफ से पहले पढ़ना सुन्नत था, जहाँ जहाँ पढ़ना सुन्नत था, एज इट इज़ बाकी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम हमजा अत्तारी है, मैं हाफिज़ बन रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा तरीका बता दे कि मैं हिफ्ज़ के बाद भी इसे याद रख सकूँ। मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फ़ारूक रहमतुल्लाह अलैह को जब कोई आयत पूछी जाती तो फ़ौरन बता देते थे। यहाँ तक कि तर्जमा कंजुल ईमान पर इतना अबूर था कि तर्जमा कंजुल ईमान बताते तो भी आयत बता देते थे कि ये फुला आयत है। तो इनसे जिसने बताया उसने कहा कि मैंने पूछा कि आखिर इतना तुमको कैसे याद हो जाता है? याद है। तो फरमाया कि मैं एक मंजिल रोज़ाना तिलावत करता हूँ कुरान करीम की। तो एक मंजिल अगर तिलावत करें ना तो पूरे महीने में 4 कुरान ख़त्म हो सकते हैं। तो आप समझ जाए इसमें कि किस तरह हिफ्ज़ रहता है। जो हिफ्ज़ करना आसान है, इसको बाकी रखना मुश्किल है। तो अब हाफिज़ हो गया, बहुत बड़ी सआदत की बात है। अब भुलाना जो इसको है ना, ये तो इसमें तो मतलब नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए इसको याद रखें और याद रखने के लिए इसको तिलावत करते रहें, तिलावत करते रहें तो याद रहेगा इंशाअल्लाह। अगर एक मंजिल पढ़ें ना पढ़ सकें तो कम से कम 1 पारा 2 पारा कोई ऐसा फिक्स कर लें जो पढ़ सकते हैं। फिर इसको मुस्तकिल पढ़ें, परमानेंट पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह याद रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उज़ैफ़र शाहिद है, मैं कराची और रंगी टाउन से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या लड़की अपने निकाह के वक्त हक महर में उम्रा की अदायगी लिखवा सकती है या नहीं? असल उम्रा ये हक महर में बनता नहीं है ना। हक महर में कोई भी चीज़ रकम हो, है ना, ये तो एक फ़ेल है। हज भी हक महर में ये नहीं बनता, ये नहीं लिखवा सकती। बल्कि हाँ मांगते तो हैं कि इतना इतना हक महर मुझे हमें दो, सही है नहीं तो। लेकिन ये कोई सॉलिड चीज़ नहीं है ना। ये उम्रा शरीफ एक इबादत है, नमाज नहीं मांग सकती, रोज़ा नहीं मांग सकती इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा मीरे सुन्नत से ये सवाल है कि क़यामत के दिन बंदे, हाँ ये हो सकता है कि जितना उम्रे पर जैसे खर्च होता है आजकल हो रहा है निकाह, तो ये क्या है कि इतना हक में रखवा ले। मसलन लाख रुपए खर्च होता है तो लाख रुपए हक में रखवा ले। अब लाख रुपए जवाएं तो, मगर उम्रा शरीफ के लिए फिर ये कि महरम भी साथ में, सफ़र है ना, जहाँ शरई सफ़र है। हाँ रहती मक्के शरीफ में उसने, तो उसका तो हक में थोड़ा ही होगा, फिर उम्रे का इतना खर्चा ही नहीं होता। तो मक्के शरीफ में सारे अरकान उसके तो मक्के शरीफ में अदा होते हैं ना, तवाफ भी तो सही भी, तो कोई खर्चा ही नहीं होता इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा मीरे सुन्नत से ये सवाल है कि क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? मेरा दूसरा सवाल ये है कि कौन सी नमाज ना पढ़ने से बरकत उठा ली जाती है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हदीस पाक में सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज का सवाल होगा।
ना ये दुरुस्त हुई नमाज तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, ये दुरुस्त न हुई तो बाकी आमाल बदरजा उला, बदरजा औला, इससे भी ज़्यादा मतलब है कि वो नुकसान होगा उसमें। पहले नमाज पूछी जाएगी, बाकी ये कि कौन सी नमाज ना पढ़ने से बरकत उठती है, वो ऐसा नहीं है। जो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे बरकत तो उठेगी, जब भी गुनाह करेंगे बरकत तो उठेगी। बेबरकती, गुनाह बेबरकती का बाइस है, सबब है। और बिलखुसूस असर की नमाज ना पढ़ने से बरकत उठती है बिलखुसूस, है ना। यानी यूं है कि जिसकी असर की नमाज फौत हुई तो उसके अहल व माल ये बर्बाद हुए। जी, जिसके असर की नमाज छूटी उसके अहल व माल उससे छूटे, हाँ, यादी से बर्बाद हुए। अहल यही घर के अफराद, बाल बच्चे वगैरह, माल की पहचान तो सबको है तकरीबन। सल्लू अलल हबीब। ये सवाल आया है सोशल मीडिया के ज़रिए, आज के दौर में किरायादार जिनके पास अपने घर नहीं बहुत परेशान है हुजूर। साल साल मालिक मकान किराया बढ़ाने आ जाते हैं और ब्रोकर हजरात उनको उकसाते हैं कि इसको निकाल दो, इससे ज़्यादा किराए वाला ला दूँगा। ये आपसे कह रहे हैं कि हुजूर ये बिजनेस बन चुका है, लोगों में एहसास ख़त्म होता जा रहा है, आप कुछ इरशाद फरमाइए। सब नमाजी बन जाए ना, मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। वही अभी बात हुई ना बेबरकती की, अल्लाह पाक की हम नाफरमानी करते रहें और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी हर बात माने, जो दुआ बोले हाथ कबूल हो जाए। एक चोट करने की बात है, जिससे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये मिसालें दी हैं इसकी, कि अफसर एक दोस्त अपने दोस्त की बात ना माने, दोस्त कहे कि ये दो वो करो तो कुछ भी ना करे, फिर इसकी ज़रूरत अटके, और अब दोस्त से कहते हुए पहले तो शर्माएगा, और अगर दोस्त वो काम ना करे तो भी उसको यूँ जहन बन जाएगा कि मैंने कौन सी इसकी बात मानी। तो यहाँ भी यही है, हम मतलब चूँकि अल्लाह पाक की नाफरमानी अब बहुत करते हैं, गुनाह जो है ये मतलब तबाही लाते हैं, तो ये हमारे गुनाहों की सज़ा हो तो ताज्जुब नहीं है कि ये मतलब किराएदार, ये जो ऑनर जो हैं ये बाज़ बड़े मतलब सख्त होते हैं। हर ऑनर सख्त नहीं होता, मालिक मकान हर एक सख्त नहीं होता, लेकिन सख्त भी होते हैं। ब्रोकर भी, हर ब्रोकर इस तरह करता हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी हो रहा है। तो ये क्या, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और एहसान करना चाहिए। मालिक मकान आम तौर पर इसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो इतना बड़ा मकान है इसके पास, तो ये कि ये अपने किराएदारों पर नरमी करे, नरमी करेगा तो इसका अज्र पाएगा, और बात बात पर किराए ना बढ़ाएं। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, खाली हमारे वतन का नहीं है, हर जगह ही है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ बाहर मुल्क में भी है। तो जिस तरह सैलरी हर साल बढ़ती है ना, लोगों की जो हालात होते हैं उसके हिसाब से या कम ज़्यादा, तो किराएदार के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसने अपना जो किराए का मकान रखा होता है उस मकान से ही उसका घर चल रहा होता है, या यूँ समझिए कि वो खुद किराए पर भी रह रहे होते हैं और आगे अपने मकान भी बाज़ औक़ात चीज़ें किराए पर दी हुई होती हैं। तो अगर कोई उर्फ़ के मुताबिक जैसा कि सालाना भाई इतना तो बढ़ता ही है, इतना तो जैसे कि सैलरी को इंक्रीमेंट लगता है तो किराया इतना तो बढ़ता है, कि सालाना बिजली का बिल बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, सब बढ़ता है, तो वो भी एक आम आदमी जो किराए पर उसने दिया हुआ है, तो अगर उसके अंदर इतनी वसायत है ही नहीं और वो भी देखता है कि किराया बढ़ेगा तो मेरे घर का खर्चा भी थोड़ा सही चलेगा, तो और जो किराए पर रह रहा होता है उसकी पोजीशन अच्छी होती है बाज़ औक़ात कि वो मतलब कि कर सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुस्तस्नियात तो होते हैं, मैंने ये कहा कि जिसके पास उमूमन ये साहिब हैसियत होते हैं, ये जो मकानात जिनके पास होते हैं ना, किराए पे चलाते हैं, और अगर उसके पास गुंजाइश है तो उसको नरमी करनी चाहिए, वरना ये कि ये तो आपकी बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि ज़ाहिर है कि हर चीज़ का दाम बढ़ता है, इसको भी अब किराया, तो ये बिजली का बिल जो किराएदार होता है वो पेमेंट करता है, गैस का बिल, पानी का टैक्स वगैरह ये खुद ही किराएदार पर ही होता है, ये
اس کا مکان مالک کا نہیں ہوتا یہ. تو مکان مالک کے اپنے اخراجات بڑھ جاتے ہیں دیگر حوالوں سے, تو اس لیے وہ کرایہ بڑھاتا ہو. اگر اس لیے بڑھاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے, ہرس کے لیے بڑھاتے ہیں وہ. اب یعنی سمجھو کہ خرچہ 100 روپے بڑھا, یہ 1000 روپے بڑھا دے گا کرایہ, اس کا کیا؟ تو یہ سب کو نرمی کرنی چاہیے اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ بڑھائے. تو یہ جو کرایہ بڑھاتا ہے تو کرایہ دار کو یہ سمجھایا بھی جا سکتا ہے, مگر سچ کم بولتے ہیں, اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. اس میں جو اس نے بروکر کا جو سوال کیا نا حضور, یہ بڑا قابل غور ہے کہ بروکر, اگر ایسا کوئی بروکر کرتا ہے تو بروکر کی اس میں بعضوں کا لالچ یہ ہوتی ہے کہ نیا کرایہ دار آئے گا تو اس کو 1 مہینے کا جو بروکری ہے نا وہ اس کو مل جاتی ہے. تو اب یہ تو ہر 2-4-6 مہینے کے بعد کرایہ دار کو فارغ کرا کر نیا کرایہ دار لانے کی کوشش کریں گے. تو بروکروں کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کے اگر کوئی بروکر ہیں کہ وہ اپنی بوٹی کے لیے کسی کا بکرا کاٹنے کے بعد تلے ہوئے ہیں, تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی نرمی اور رحم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ تو کسی کو تکلیف میں دینے کا مشورہ دے رہا ہے, یہ تو شرن بھی درست نہیں ہے, ناجائز کام ہے کہ اس کو روڈ پہ ڈالو, میں لاتا ہوں دوسرا, تو مجھے پیسے دینا بس. یہ تو توبہ کرنی چاہیے. کرایہ دار تو یہ کہ جیسے اس نے ایگریمنٹ کیا 1 سال کا, تو یہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس سے معذرت کر لے کہ بھائی اب میں آپ کو کرایہ پہ نہیں رکھتا. تو یہ شرن گناہ گار نہیں ہے. اگر رہنا ہے تو بھائی اتنے اور دے دو پیسے, اب آئندہ اتنے ہوں گے, تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. بروکر جو کر رہا ہے نا یہ تو حرام پائی کر رہا ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے. توبہ بھی کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے کہ جس کرایہ دار کو اس نے روڈ پہ ڈالا, اس طرح مکان مالک اس کی باتوں میں آ بھی جاتے ہوں گے. تو یہ کہ حق العبد تلف ہو نا, بندے کی حق تلفی ہوئی, اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی, اس کو راضی کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے تو کیا توبہ سے پہلے جو گناہ کیے تھے ان گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا, اس لیے وہ گناہ ہو تو ڈرتا تو رہے. حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے. تو کسی نے لوگوں نے ان کو سنبھالا اور جب ہوش میں آئے تو کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ یہ بس اس مکان کے پاس سے آتا ہوں کبھی, تو اس میں نے بچپن میں ایک گناہ کیا تھا تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے, تو میری یہ حالت ہوئی. یہ اللہ والوں کی شان کہ گناہ کر کے بس وہ ایک سمجھو کہ اب گناہ بھی کیا تھا خدا بہتر جانے, گناہ تھا بھی یا نہیں تھا, لیکن ان کی اگر بچپن میں تھا تو بچپن کا گناہ ویسے کاؤنٹ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی خوف خدا کا عالم یہ کہ ایک بار گناہ ہو گیا, اللہ کی نافرمانی ہوگی, تو اب ہمیشہ کے لیے سر نیچا, شرم کے مارے نیچا. ایک بزرگ کا وقت ہے نا کہ وہ سر کبھی آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے, تو انہوں نے غالباً یہ فرمایا کہ میرے کو 30 سال ہو گئے میں نے آسمان پر سر نہیں اٹھایا, کیونکہ ایک بار میں نے اپنے پڑوسی کے مکان سے مٹی اکھاڑ کے اپنا ہاتھ صاف کیا تھا. پہلے پہلے صابن نہیں ہوتا تھا نا, مٹیوں سے صاف کرتے تھے لوگ, تو صاف کیا. اور میں نے سوچا کہ یہ مٹی تو معمولی شے, اس میں کیا کر کے یوں اکھاڑ لیا تھا. تو مجھے خواب میں کہا گیا, یہ آواز آئی تھی کہ تو پتہ چلے گا تجھے کہ معمولی کس کو بولتے ہیں, قیامت کے دن پتہ چلے گا. بس وہ دن, آج کا دن 30 سال ہوئے, آسمان کا سر نہیں اٹھا شرم کے مارے, یہ میں نے کیا کر دیا, اتنی بڑی خطا کر دی, اتنی بڑی بھول کر دی. تو اس طرح یہ اب یہ ہو سکتا ہے میں کچھ بھولا ہوں گا, اس میں اس طرح کے واقعات پڑھے ہوں گے آپ نے بھی کہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک بار خطا ہو گئی, بھول ہو گئی, گناہ ہو گیا, تو بس یہ زندگی بھر یاد رکھتے تھے. جی لکھوا, وہی سوچ رہا تھا لکھنے کا, یہ گناہ کیا تو اپنا اندر سائڈ میں اس طرح لکھ لیتے تھے کہ وہ دیکھ کر گناہ یاد آتا رہے. ہم لوگ تو یار گناہ اتنے کہتے ہیں, لکھنے جائیں تو کہاں لکھے, بڑے بڑے چوپڑے جائیے. ہمارا انداز بدل گیا, ہمیں نیکی کر کے یاد رہتی ہے, گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. حالانکہ انداز بدلنے کا بڑا پیارا
मतलब बहुत प्यारा बयान किया, समझे उसके लिए बहुत कुछ है। अंदाज बदलने से वाकई तरकीब बिल्कुल चेंज आमतौर पे हो जाती है। मेरा बयान की मिसाल दी हकीकत है कि मैं पहले जो बयान करता था तो वो थोड़े लोग होते थे, जब ये दावत इस्लामी बनी और जहन बना के बयान यूँ होना चाहिए, और फिर जो वो यूँ किया तो यूँ हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मतलब इसमें बरकत डाली, अल्लाह ने तौफीक भी दी। बयान तो पहले भी वो शरीयत के मुताबिक कुरान और हदीस का ही बयान होता था जैसे, लेकिन वो अंदाज कुछ और था, अब अंदाज कुछ और है। बातें भी वो भी दुरुस्त थी, ये भी दुरुस्त है। वही है क्या, वो बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, दोनों सही है, लेकिन बैठ जाइए कि लज्जत और तशरीफ रखिए, इसकी लज्जत पे फर्क है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं मैं बार बार तौबा करता हूँ लेकिन बाद में वही गुनाह हो जाता है, मैं क्या करूँ? तौबा पर इस्तिकामत नहीं रहती, गुनाह करने के बाद अल्लाह के अजाब से डर भी लगता है, कोई हल बताएं। तौबा तो जारी रखे, और अब सीरियस असल हम लोग नहीं होते, हम लोग तौबा 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 तौबा, ये थोड़ी तौबा यार। अन नदमो तौबतुन, हदीस पाक में शर्मिंदगी तौबा है। तो असल तो वो नदामत ऐसी हो ना दिल में, शर्मिंदगी की कैफियत हो, फिर तौबा करे तो इसके जो अरकान है इसका पे ध्यान रखे, उस फेल का तस्करा करके तौबा करे कि वो जो उस दिन झूठ बोला मैं इससे तौबा करता हूँ, और बिल्कुल जहन पक्का हो इसमें क्या आइंदा मैंने ये गुनाह कर रहा ही नहीं है, आइंदा कभी भी नहीं करूँगा ये गुनाह, ये भी ज़रूरी है। आइंदा मैं बच तो नहीं सकूँगा, गुनाह तो बस हो जाता है अपने से, ये झूठ तो निकल जाएगा मुझसे, और तो ये तौबा नहीं है। तौबा एक फाइनल डिसीजन हो कि अब ये गुनाह नहीं करूँगा, ये भी एक रुकन है तौबा का, तो फिर तौबा कबूल होगी। तो इसके अरकान के मुताबिक अगर तौबा करेगा तो इंशाअल्लाह इस्तिकामत भी मिलेगी। फिर बतकाज़ा बशरियत को गुनाह हो गया तो फिर उससे इसी तरह पक्की तौबा करे तो अल्लाह करेगा तो कभी न कभी तौबत नसूह की भी शहादत मिल जाएगी। तौबत नसूह माने बाकी रहने वाली तौबा। कहते कई साल तक अपने घर में नमाज पढ़ी, बाद में मालूम हुआ कि मेरा घर किबले की जानिब से 24 डिग्री से ज़्यादा बाएं तरफ फिरा हुआ है, तो मेरी पिछली नमाजों का क्या हुक्म? तो 24 डिग्री, अच्छा इनको यूँ होगा कि 24 से बाहर नहीं जाना चाहिए, सर 45 डिग्री, 45 डिग्री के अंदर अंदर है किबले की तरफ जैसे, तो थोड़ा सा तिरछा, तो 45 के अंदर अंदर है तो नमाज हो जाएगी। 45 से बाहर निकला, 45 पूरा हुआ, 45 से बाहर हुआ, 45 डिग्री से बाहर हुआ तो अब नमाज नहीं होगी। यही इस्तिंजा खाने का भी है कि इस्तिंजा करते वक्त, पेशाब वगैरह करते वक्त किबले की तरफ मुंह हो ना पीठ। तो मैंने जब ये समझाना शुरू किया ना तो लोगों ने अब थोड़ा सा वो तिरछा का, फिर मुझे एहसास हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो गया, रॉन्ग नंबर इनको समझ नहीं आई है कि 45 डिग्री। फिर मैंने ये कहना शुरू किया कि जिस तरफ जैसे सलाम करते ना नमाज में, इस तरफ मुंह या पीठ। फिर ये समझाना शुरू किया मैंने कि 45 डिग्री में सब समझें ज़रूरी नहीं है, बड़े बूढ़े तो आमतौर पर कम ही समझे, शायद इसमें 45 के एंगल पे हो, तो ये फिर समझाना शुरू किया तो शायद इसमें कुछ फ़ायदा है ना। हाँ, तो इसलिए 90 में भी नहीं समझेंगे सलाम, जिस तरफ नमाज में हम सलाम फेरते ना दोनों तरफ, तो इस तरफ या इस तरफ मुंह पीठ ये करें। नमाज जिस तरफ पढ़ते हैं इस तरफ भी नहीं, और इसके पैन पीछे पीठ की तरफ भी नहीं, इस्तिंजा खाने का वॉशरूम का। लेकिन बहरहाल हमारा तो फिर भी कहीं कहीं ख्याल रखा जाता होगा, बाहर मुल्कों में तो साव समझ ही नहीं पड़ती इनको, मस्जिद में भी। तो अब इसमें कुछ खैर है गुफ्तगू उसके आगे, ताहम यह कि हमको घर में जो है ये अपना घर बनाए तो या किराए का लिया, और अगर मकान मालिक से इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि वो तोड़ फोड़ होगी ना इसमें, तो कानून यही है इजाज़त ले, और शायद कानूनी भी परमिशन लेनी पड़ती है इसमें। तो जो भी है उसके तकाजे पूरे करके वो किबले, वो रुख इसका WC का
ये कम मोड़ का तब्दील कर दिया जाए, वरना गुनाह होता रहेगा। अगर तिरछा होकर बैठना ये है आसान नहीं है, दुश्वार होता है, हर फर्द नहीं बैठ सकता कि बिल्कुल 45 से बाहर निकल कर ये सारा प्रोसीजर पूरा करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उसका एतकाफ टूट जाता है तो क्या एतकाफ की क़ज़ा होती है? जज़ाकल्लाह। वैयाकुम, जी हाँ कज़ा होती है इसकी। तो एक दिन की कज़ा है, जिस दिन इत्तिकाफ टूटा ना उस दिन की एक दिन की कज़ा है। चाहे तो अब जैसे 10 दिन के इत्तिकाफ का टाइम बाकी है, मसलन आज किसी का आज 28वां रोज़ा है, आज किसी का इत्तिकाफ टूटा तो 29 का रोज़ा वो इत्तिकाफ कर सकता है। वो इस तरह के जैसे आज 28 गुरूब आफ्ताब के वक्त वो इत्तिकाफ कज़ा की नीयत से मस्जिद में हो, और फिर अब कल गुरूब आफ्ताब के वक्त इसकी कज़ा पूरी हो जाएगी। और रमज़ान शरीफ के अलावा किसी और दिन के, ईद के दिन नहीं कर सकते, जो 5 दिन हराम है रोज़ा उन दिनों नहीं कर सकते, इसके अलावा कर सकते, क्योंकि इसमें रोज़ा भी शर्त है, इत्तिकाफ कज़ा में भी रोज़ा शर्त है। तो ये क्या किसी दिन वो इस तरह कर ले, गुरूब आफ्ताब के वक्त कज़ा इत्तिकाफ की नीयत से मस्जिद के अंदर हो, और अब ये क्या वहीं मस्जिद में दिन गुजारे, रोज़ा भी रखे, रात भी गुजारे, दिन गुजारे, फिर सूरज डूबेगा तो फिर ये इत्तिकाफ से फारिग हो जाएगा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 144, हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बैतुल खला जाओ तो क़िबले की तरफ न मुँह करो और न पीठ। ये वहाँ जो गुफ्तगू हुई ना इसकी क़िबले की, तो वहाँ ये एडजस्ट कर लीजिएगा ये रिवायत इंशाअल्लाहुल करीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, मदनी शरीफ के नाज़रीन, इफ्तार का मुबारक वक्त है, तौबा भी करते हैं और सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीदों में अमीर अल सुन्नत के ज़रिए शामिल हो जाते हैं। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरे मुरीदों और मेरे दोस्तों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो वो इस्लाम भाई मदनी शरीफ के नाज़रीन, जब तक 29वीं शब में हम अनकरीब दाखिल होंगे, तो 29वीं शब बड़ी अहम है। हज़रत शेख अबुल हसन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जब भी इतवार को पहला रोज़ा पाया तो 29वीं शब को लैलतुल क़द्र पाया। तो इस बार पहला रोज़ा इतवार को हुआ था। तो शेख अबुल हसन इराक़ी के तजर्बे के मुताबिक, यूँ ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए, तो ये आज की रात अहम है कि हो सकता है यही लैलतुल क़द्र हो। अल्लाह पाक हमें इसकी कद्र नसीब फरमाया। तो जो आगे आ गए हैं तो उनको जल्दी अब भी पीछे चले जाएं तो अच्छा है, वरना मगरिब की सफ़ें बनेंगी तो प्रॉब्लम होगा। फिर दिल आज़ारियों की भी बाज़ का सूरतें बनती हैं। माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी करम फरमाए या अल्लाह, जो जल्दी पीछे जाए जल्दी मदीना देखे, और इस साल जल्दी इसको हज भी नसीब हो जाए। सल्लु अलल हबीब। ये जो आ जाते हैं, ये बाहर के भी अभी ये जो आ जाते हैं और फिर ये जिनको पीछे आप भेज रहे होते हैं तो इनको आप दुआ देते हैं, और जो उठते ही नहीं हैं, अपनी सफ़ पे बैठे रहते हैं, हिलते ही नहीं हैं, बोले नहीं हमें तो मना फरमाया था, तो इनको भी तो नवाज दो ना। फिर ये तो ऐसे मानते कि वो माने हुए होते हैं, वो तो बिगैर माने आ जाते हैं, फिर आपके के दोबारा चले जाते हैं। उनको तो हज भी करा दो, उन्हें मदीना भी दिखा दो, तो इनका भी कुछ करा दो ना। ये बेचारे हिलते विलते नहीं है, बैठे रहते हैं। हमारी पहले तो बड़ी बूढ़ियाँ दुआ देती थी, अल्लाह तो के 7 हज कराए, 7 हज कराए। तो चलो उसी को मैं दोहरा देता हूँ
کہ جو بیٹھے رہتے اپنی جگہ پر اللہ پاک ان کو 7 حج نصیب فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ کیا بات ہے. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب. درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب. میری آنکھوں کو دے وہ بینائی، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب، تو ہی آئے مجھے نظر یا رب. درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب. ورد میرے ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب، جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب. تیرے محبوب کا میں واصف ہوں، تیرے محبوب کا میں واصف ہوں. تیز زبان میں میری اثر یا رب، تیز زبان میں میری اثر یا رب. تیری رحمت جو ساتھ میرے لگے، تیری رحمت جو میرے ساتھ رہے، مجھ کو کس کا ہو پھر خطر یا رب، مجھ کو کس کا ہو پھر خطر یا رب. جان نکلے تو اس طرح نکلے، تیرے در پر ہو میرا سر یا رب. قبر میں اور جا کنی کے قبر میں اور جا چلی کے جب ہو حالت میری دیگر یا رب، سختیوں سے مجھے بچا لینا، سختیوں سے مجھے بچا لینا، رکھنا
रहमत के तू गौहर या रब भर दे रहमत के तू गौहर या रब दर्द अपना दे इस असर या रब तेरे जुल्मों कसूर पर तू न जा मेरे जुर्मों कसूर पर तू न जा मेरे जुर्मों कसूर पर तू न जा अपनी रहमत पे कर नजर या रब ना ठिकाना मेरा लगेगा कहीं ना ठिकाना मेरा लगेगा कहीं तूने छोड़ा मुझे अगर या रब तूने छोड़ा मुझे अगर या रब कादरी गैर जमील कादरी गैर जमील गफ्फार सब गुनाह इस के अफ़्व कर या रब सब गुनाह इस के अफ़्व कर या रब अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहदु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब अल्लाहुम्मा अदखिलना जन्नतल फिरदौस बिगैर हिसाब या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरे गुनाहगार बंदे तेरे दरबार में गुनाहों से लिथड़े हुए हाथ फैलाए हाजिर हैं। अल्लाह पाक गुनाहों से मुआफ़ी के तलबगार हैं। मौला करीम हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन सच्ची नदामत दे दे, सच्ची तौबा, बाकी रहने वाली तौबा, तौबतुन नसूह नसीब फरमा, तौबा पे इस्तिकामत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पाक गुनाह की तरफ हम रुख ना करें, हम नेकियां करते रहें। या अल्लाह पाक तेरी और तेरे हबीब सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा वाले काम करते रहें। ऐ काश हम सिर्फ वही काम करें जो सवाब दिलाएं। ऐ अल्लाह पाक बेकार फजूल ला यानी कामों से हमें ऐ अल्लाह पाक बचा ले बचा ले बचा ले, तू बचाने वाला है। वरना ऐ अल्लाह पाक हमने तो कोशिशें की बहुत मगर मेरी हालत बुरी रही। ऐ अल्लाह पाक हमारी कोशिशें कारगर नहीं हो पा रही, तेरा करम ही है जो तू चलने देता है। वरना हम इतने गुनाह करते हैं कि अगर जमीन फट जाए हम धंस जाए तो भी कम है ऐ अल्लाह पाक, लेकिन जमीन हमारा बोझ उठाए हुए है, ये तेरा करम है। हमारे गुनाहों के बोझ के बावजूद जमीन हमारे लिए फटती नहीं है, ये तेरा करम है। ऐ अल्लाह पाक ये गुनाह ही चले जाएं, गुनाहों की आदत ही रुखसत हो जाए, हम नेकियां करने वाले बन जाएं, हमारे हाल पर रहम कर दे। ज़मीं बोझ से मेरे फटती नहीं है, ये तेरा ही तो है करम या इलाही, ये तेरा ही तो करम या इलाही, ये तेरा ही तो है करम या इलाही। मुझे बख्श दे दे सबब या इलाही, मुझे सबब या इलाही, न करना कभी भी गज़ब या इलाही, न करना कभी भी गज़ब या इलाही। या अल्लाह पाक सोशल मीडिया के जरिए जो हमारा वक्त बर्बाद होता है ये भी बच जाए, तेरी इबादत में गुजरे, गुनाह भरे क्लिप्स हम ना देखें, सिर्फ हम नेकियों भरे क्लिप्स देखें, फजूलियात में भी हमारा वक्त बर्बाद ना हो। मौला करम कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता फरमा। मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, जिनके हुकूक फंसे हैं इनके हुकूक मिल जाएं। ऐ अल्लाह पाक जिनकी रकमें फंस गई हैं ये भी इनको हासिल हो जाएं। इलाहुल आलमीन जो मकान के किराए की वजह से परेशान है इनको रोजी में बरकत दे ताकि किराए अदा कर सकें। ऐ अल्लाह पाक जो बिला वजह किराया बढ़ाते हैं अल्लाह पाक इनको तौफीक दे कि नरमी करें, सबको नरमी से तकादा करने की सआदत इनायत फरमा, सबको नरमियाँ दे, मुसलमानों की खैरखाई का जज्बा अता फरमा, अपने भाइयों की भलाई का जज्बा अता फरमा। इलाहुल आलमीन किरायादारों को भी मकान मालिकान से ताउन करने की सआदत अता फरमा, आपस में मोहब्बतों के रिश्ते रहें, एक दूसरे का दुख दर्द और मजबूरियाँ समझने की भी तौफीक अता फरमा। सब पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, सबको बरकतें दे, बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत फरमा। ऐ अल्लाह पाक इनकी औलाद नाफरमान है उसे फरमाबरदार कर दे, हमें हमारी औलाद से हमारी आंखें ठंडी हों। ऐ अल्लाह पाक ऐसा करम कर दे कि हम सब बाल बच्चों समेत तेरी इताअत वाले कामों, तेरी इताअत के कामों में लग जाएं, तेरे महबूब की सुन्नतों पर अमल भी करें, तेरे महबूब की सुन्नतों को आम भी करें। जितने भी मोतकिफीन हैं, आशिकान रमजान हैं, जो भी हमारे साथ मदनी चैनल पर दुआओं में शामिल हैं, ऐ अल्लाह पाक सबकी जायज दिली मुरादों पर रहमत की नजर कर दे, सबको हाजी बना दे, सबको पक्का नमाजी बना दे, ज़कात पूरी अदा करने की सआदत दे, रमजान के पूरे रोजे रखने की सआदत दे, जिनके रोजे कज़ा हुए हों अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक सबको मदीना दिखा दे, मीठा मदीना बार बार दिखा, बार
بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ پاک ایسا کرم کر دے کہ اسی سال ہم سب حج کے لیے چلے جائیں, حج کی سعادت پالیں. اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے, سب کے لیے غیب سے اسباب بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. عذاب نار سے آزادیوں کا غیر اشارہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہو, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے, کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یا اللہ پاک تیرے کرم سے 28ویں روزے کی تکمیل ہوئی, افطار ہو گیا. اے اللہ پاک 29ویں شب آ گئی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. اے اللہ پاک 29ویں شب آ گئی. اے اللہ پاک ہو سکتا آج لیلۃ القدر ہو, ہمیں قدر نصیب فرما دے. اے اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پاک برائیوں سے فضولیات سے بچا لے. اے اللہ پاک نیکیوں میں دل لگا دے. اے اللہ پاک ہم نیک بن جائیں, نمازی پکے بن جائیں, سجدوں کی لذتیں پائیں. اے اللہ پاک حج نصیب ہو, میٹھا مدینہ دکھا دے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد ملے, مریض شفا یاب ہوں. اے اللہ پاک دکھی سکھی ہوں, پریشان حال خوش ہوں. اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا, ہمیشہ 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 کے لئے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ پاک اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا, خدا کی قسم تیری قسم ہم برباد ہو جائیں گے. ہمیں ہلاکت سے بچا لے, بربادی سے بچا لے. اے اللہ پاک اب تو رمضان کے آخری لمحات رہ گئے, کوئی بعید نہیں ہے کہ کل اس ٹائم پر رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہو. السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پاک ہمیں آخری لمحات جو رہ گئے ان کا قدردان بنا دے, نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے. اس کی برکتوں سے ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے. افطار کے وقت جو 10 لاکھ روزانہ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں, انہی کا صدقہ ہمیں بھی آزادی نصیب کر دے. اے اللہ پاک رحمت کی نظر گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے. تو بخش بے حساب کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا.